اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ داستان ہے ایک ایسے مجاہد کی جس نے زندگی کو مقصد بنایا اور مقصد کو عبادت کا رنگ دیا. یہ کہانی ہے نیزہ پیر کے ہیرو کی. یہ کہانی ہے آزاد کشمیر کی. 13 جنوری 1958 وقت کی پیشانی پر ایک روشن لکیر بن کر ابھری. ضلع حویلی آزاد کشمیر کی مٹی نے اس دن ایک ایسے فرزند کو جنم دیا جو آگے چل کر استقامت، وقار اور وفاداری کی مثال بنا. والد محترم نے جب آپ کا نام یوسف رکھا تو گویا اسی لمحے حسن اخلاق اور شرافت کی ایک خاموش بشارت بھی ساتھ لکھ دی گئی. یہ نام صرف پکارنے کا ذریعہ نہ رہا، بلکہ آپ کی شناخت، آپ کا حوالہ اور آپ کی پہچان بن گیا. یہ صرف ایک نوجوان نہیں تھا، بلکہ امید، محنت اور بلند کردار کا پیغام تھا. کردار کی یہ روشنی صرف ظاہری دنیا تک محدود نہ تھی. اس کی جڑیں اس روشن باطن میں اترتی تھیں جہاں یقین چراغ کی طرح جلتا اور ارادہ عبادت کا روپ دھار لیتا ہے. ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے معمار ان کے والد محترم استاد محمد اکرم قریشی تھے. آپ نے اپنی ذاتی محنت، لگن اور اخلاص کے ذریعے علم و آگاہی کی روشنی کو عام کیا. محمد اکرم قریشی نے اس دور میں بھی ہزاروں بچوں کو اپنے گھر پر تعلیم دی جب باقاعدہ تعلیمی اداروں کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا. ان کا یہ مختصر سا گھر علم کا چراغ اور بستی کے لیے امید کا مکتب بن گیا تھا. جس گھر میں ادب، اخلاق اور علم سکھایا جاتا ہے، وہاں سے بہترین لوگ پیدا ہوتے ہیں. 1991 جب فضاؤں میں بارود کی خوشبو گھل گئی تھی اور برف پوش چوٹیاں آگ کے شعلوں میں جل رہی تھی، ہر سانس ایک قرض بن گئی تھی. مگر اس دن ان بلند چوٹیوں پر ایک مرد استقامت کھڑا تھا. نہ جھکا، نہ پیچھے ہٹا، فصیل یقین بن کر کھڑا ہو گیا. تو آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں نیزہ پیر کے ہیرو کی وہ روح پرور کہانی جو آنے والی نسلوں کے لیے صرف ایک مثال نہیں، بلکہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور افواج پاکستان کی عزت، وقار اور شجاعت کی بلند ترین مثال ہے. رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. میرا نام میجر محمد یوسف قریشی ہے اور میں نے 1979 میں پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کی کیونکہ میرے لیے وطن کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے. میجر یوسف قریشی نیزہ پیر کے ہیرو. فوجی سفر کی ابتدا ہی سے وہ سفر فوج پر درخشندہ ستارے کی مانند طلوع ہوئے.
दरहकीकत ये सिर्फ उनकी काबिलियत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर यकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी कि जो करते वो खुलूस से दिल से करते और अल्लाह उन्हें कामयाब करता। उन्होंने हाथों में सिर्फ हथियार नहीं थामा, वो खुद एक धार बन गए, वजूद अपना मिटाकर सरहद का संगीन हिसार बन गए। और जब इंसान खुद एक मिसाल बन जाता है तो तकदीर उसे आजमाइश के मैदानों में ले आती है, जहां फौलाद भी लरज उठता है। वक्त ने भी मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी को पुकारा, वो लम्हा जब सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि खून और यकीन से महफूज की जाती हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। तहरीक आज़ादी कश्मीर 1988। जब मकबूजा वादियों में आज़ादी का तूफान उभर रहा था, हर समत फजाएं एक ही नारे से गूंज रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। उनकी निगाहों में उम्मीद थी, उनके दिलों में यकीन था कि पाकिस्तान की अवाम और उसके अफवाज उनके शाना बशाना थे। और जब कश्मीरी मुजाहिदीन ने मकबूजा वादी में दुश्मन फौज को बिजली की तरह चीरकर रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया, जब भारतीय सिपाही खौफ के साए में अपनी राहें छोड़ने लगे, तब मकबूजा वादी के लोग हर छत पर, हर गली में पाकिस्तान का परचम लहराते और दिल से पुकार उठते, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 1990 भारत से मकबूजा कश्मीर का कंट्रोल दिन ब दिन हाथ से निकल रहा था। हर गली, हर बस्ती पाकिस्तान के हक में उठती आवाजों से गूंज रही थी। इसी बेचैनी के आलम में इंडियन आर्मी की क़यादत भी बदल दी गई और नया चार्ज दिया गया। एक सख्त मिलिट्री माहौल, एक फैसला कुन मीटिंग। कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, लेकिन ये अब आतिश फिशान बन चुका है। भारतीय इंटेलिजेंस के मुताबिक रिपोर्ट्स में लिखा था, फौज के अंदर बगावतें हो रही हैं, भारतीय जवान खुदकुशियां कर रहे हैं, तमाम जवान मकबूजा वादी से बाहर के फराइज अंजाम देना चाहते हैं। वादी से जाने के लिए वो अपनी ड्यूटी छोड़कर घरों को जा रहे हैं। मुजाहिदीन की कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं और आम आवाम भी कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तमाम हालात के पेश नज़र हमें पूरी वादी में क्रैकडाउन और शूट टू किल पॉलिसी अपनानी होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए वादी के अंदर क्रैकडाउन और बॉर्डर पर एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था। और फिर फजाओं में एक संगीन खामोशी छा गई। फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला सफ़ाकी जिसने इंसानियत का चेहरा मस्ख कर दिया। न वो सिर्फ क्रैकडाउन था, न महज गिरफ्तारियां, घरों को राख के ढेर में बदल देना, बस्तियां उजाड़ना और बेगुनाह नफूस को कैद बेअमान में धकेल देना। ये वो तशद्दुद बेमिसाल था जिस पर तारीख आज भी खून के आंसू रोती है। लेकिन इस बर्बरियत के पीछे एक ही शैतानी मंसूबा राइज था कि कश्मीरियों की जबीन से आज़ादी का नूर छीन लिया जाए, कि उनके दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत का चिराग गुल कर दिया जाए और उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो अपनी उम्मीद और तमन्ना के मरकज पाकिस्तानी अफवाज से मोड़ लें। दुश्मन ने जनवरी के महीने से अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। रास्तों को बंद करना और सरहद के करीब हर जगह मजबूत मोर्चे बनाना, ये सब एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी थी।
दुश्मन ने अपनी सप्लाई लाइन के जरिए फौजी ट्रकों में सामान मंगवाना शुरू किया। मजीद यूनिट्स को मकबूजा वादी के अंदर तैनात किया जाने लगा। दुश्मन ने बेदूरी बेल्ज की तरफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी और अपनी सिपाह को भी मुकम्मल तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। ऐसे नाजुक हालात में पाकिस्तान फौज के बहादुर अफसर मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने निज़ापीर सेक्टर में जिम्मेदारी संभाली। जब तक वतन का दिफा यकीनी नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ फर्ज नहीं, ये ईमान का हिस्सा है। कश्मीर की वो कोसार सब्ज जहां खामोशी भी एक अबदी पैगाम सुनाती है। निज़ापीर ये महज कोई कोहे बुलंद या पत्थरों का ढेर न था, ये तो एक शहरगे इक़्तिदार थी, एक ऐसा दरीचा जहां से फतह और शिकस्त के फैसले सादिर होते थे। इसकी अजमत का अंदाजा इस बात से कीजिए कि अगर ये मकाम हाथ से निकल जाता तो बदूरी सेक्टर की तबाही सिर्फ वक्त की बात रह जाती। 1965 की वो तारीख साज जंग याद कीजिए, जब हिंदू बनिए ने नेज़ा पीर और हाजी पीर पर कब्जा करके अपने अज़ाइम के लिए रास्ता हमवार किया था। मगर इस बार खौफ ये था कि अगर मोहरी पोस्ट की मिट्टी दुश्मन के कदम चूम लेती और अगर फॉरवर्ड कहोटा दुश्मन के नापाक अज़ाइम की जद में आ जाता तो फिर दुश्मन की वो मगरूर पेशकदमी हमारी हर सरहद को खुल्लम खुला ललकार रही होती। मई 1991 से दुश्मन ने मशकूक सरगर्मियां शुरू कर दी थी। ट्रायंगल के इलाके में शहरी मकानात को ऑब्जर्वेशन पोस्ट में तब्दील कर दिया गया था। भारी हथियार खामोशी से तैनात किए गए। मजीद मोर्चे दुश्मन ने तामीर करना शुरू कर दिए और एक बाकायदा हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। अगस्त तक गश्त और रेकी की सरगर्मियां नुमायां तौर पर बढ़ चुकी थी। 22 और 23 अगस्त की रात इशारे बिल्कुल वाज़े थे। हमला करीब था। दुश्मन का मंसूबा मुकम्मल तैयार था और वो सिर्फ दिल्ली के हुक्म का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हुक्म आएगा हम हमला शुरू कर देंगे। इस खतरे का सामना कर रही थी 650 मुजाहिद रेजिमेंट की एक कंपनी। इनमें से 75% जवान ऐसे थे जिनकी सर्विस को 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर इनके इरादे पहाड़ों से भी बुलंद थे। मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने फैसला किया कि क़यादत फ्रंट से होगी। बटालियन टैक्टिकल हेडक्वार्टर को आगे मुंतकिल कर दिया गया। वो खुद मोर्चों में मौजूद थे। इनकी क़यादत ने जवानों के दिल मजबूत कर दिए। इनके अल्फाज थे, ये ज़मीन अमानत है और अमानत का दिफा फ़र्ज है। हैरानकुन बात यह थी कि ज़्यादातर जवान अभी तरबियत मुकम्मल करके आए ही थे। उन्हें बड़े हथियार चलाने का भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, मगर मेजर यूसुफ कुरैशी इस जंग के दौरान उन्हें हथियार चलाना भी सिखाते और लड़ाते भी थे। 26 अगस्त 1991 सुबह 5 बजे 19 पंजाब रेजिमेंट ने शदीद हमला शुरू किया। आर्टिलरी की बारिश, एंटी टैंक हथियार, हैवी मशीन गन्स 3 समतों से यलगार। पहाड़ लरज उठे, मगर मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी अपने जवानों के दरमियान थे। उनकी रहनुमाई में सिपाहियों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। दिन के 1 बजे तक दुश्मन को भारी नुकसान के साथ पसपा होना पड़ा। मोहरी पोस्ट कायम रही। सुन लो, ये मार्का मिट्टी के किसी टुकड़े का नहीं, ये तो ज़मीर की बका का सवाल है। अपने कदम यहाँ पहाड़ों की तरह जमा दो। जब भी दुश्मन का हमला पसपा होता तो मेजर यूसुफ हर मोर्चे में जाते और जायजा लेते कि जवानों के साथ साथ एमुनेशन और हथियारों की क्या सूरत हाल है, क्या दिफा में कोई कमजोरी तो नहीं आ रही, प्लान में क्या तब्दीली की जा सकती है और कैसे दुश्मन को मजीद नुकसान पहुंचाया जाए। ये सब उनकी आला कमांड और अस्करी जहानत का सबूत था। 28 और 29 अगस्त की रात फिर हमला हुआ। 5 गार्ड बटालियन ने 3 मरतबा कोशिश की, मगर तीनों कोशिशें नाकाम बना दी गईं। दुश्मन कभी बाएं जानिब अपनी सिपाह की हरकत दिखाता, लेकिन असल हमला दाएं जानिब से करता। कभी वो लाउड स्पीकर पर जय हिंद का नारा लगवाता और अपनी फौज को आवाज देता, शाबाश बाएं से, बाएं से। हालांकि उसका असल वार
दाएं जानिब से होता। मगर मेजर यूसुफ ने दिफा की मंसूबा बंदी निहायत सादा रखी। जब हमला रुक जाता तो वो फिर हर मोर्चे पर जाते, जवानों को दुश्मन की चालों से आगाह करते और बताते कि आगे हमारा दिफाई मंसूबा क्या होगा। इस जंग में दुश्मन ने केमिकल हथियार इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। दुश्मन ने हर वो हरबा आजमाया जो वो आजमा सकता था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जलील व रुस्वा कर दिया। और 31 अगस्त 15 राजपूत ने दोबारा यलगार की। एल्यूमिनेशन राउंड्स ने रात को दिन बना दिया और जय हिंद के नारों से फजा गूंज उठी और हर हमला नाकाम बना दिया गया। ऐसे नाजुक लम्हों में भी वो कमांड पोस्ट के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खुद मोर्चों में मौजूद थे। दुश्मन ने 2 घंटे तक मुसलसल मोहरी पोस्ट पर शदीद गोलाबारी की। राब्ता मुनक़ता हो गया और बाएं जानिब आग भड़क उठी। रेडियो पर बार बार बटालियन राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहरी से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दुश्मन ने रेडियो कम्युनिकेशन को जाम कर दिया और रेडियो पर पैगाम दिया कि अब हम आराम से फॉरवर्ड कहोटा जाएंगे। लेकिन चंद देर बाद रेडियो पर एक आवाज आती है। वो आवाज मेजर यूसुफ की होती है और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहरी पर सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, इसी दिन के लिए तो हम फौज में आए थे। वो बटालियन को आगाह करते हैं कि दुश्मन ने रेडियो जाम किया हुआ है और कोई भी हसास बात रेडियो पर न की जाए। 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी रात 6 SLI ने ताज़ा दम नफरी के साथ हमला किया। आर्टिलरी फिर गुर्जी, पहाड़ी ढलानों पर आग भिड़की, मगर हर मर्तबा मेजर यूसुफ कुरैशी की रहनुमाई में डिफेंडर्स ने हमला वापस धकेल दिया। 1 सितंबर सुबह 8 बजे तक खामोशी छा चुकी थी। मोहरी पोस्ट अब भी नाकाबिले तस्खीर थी। दुश्मन के हर हमले में उनके सिपाही मारे जाते और उनका काफी नुकसान होता। उनकी लाशें मोर्चे के सामने गिरी पड़ी रहती थी और वो लाशें तक न ले जा सकते थे। दुश्मन की फायरिंग के बावजूद 25 और 30 बहादुर जवान रात के 2:30 बजे मोहरी पोस्ट से उतरे। 1 सितंबर शाम 7 बजे से 2 सितंबर सुबह 6 बजे तक मुसलसल तोपखाने की गोलाबारी होती रही। ये इंतकाम था। मगर जब सुबह हुई, मोहरी पोस्ट अब भी सरबुलंद थी। 2 सितंबर 1991 को दुश्मन ने सफेद झंडा बुलंद किया। उन्होंने जंगबंदी की दरख्वास्त की ताकि अपने हलाकशुदा अफराद को उठा सके। ये सबूत था कि अज़्म तादाद से बढ़कर होता है। चंद जवानों ने ब्रिगेड साइज फोर्स का 10 दिन तक मुकाबला किया और इस मार्का हक में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। लेफ्टिनेंट खलील शहीद जैसे बहादुर ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जान देकर मुल्क का दिफा किया। निज़ा पीर के इस मार्के में दुश्मन के 538 जवान और ऑफिसर मारे गए और 411 शदीद जख्मी हुए। आज भी जब हवा निज़ा पीर की चोटियों से गुजरती है तो वो कहानी सुनाती है। मोहरी पोस्ट की कहानी, 650 मुजाहिद रेजिमेंट की कहानी और मेजर यूसुफ कुरैशी निज़ा पीर हीरो की कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 सितंबर 1991 निज़ा पीर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली फ्लैग मीटिंग का दिन के 10 बजे मीटिंग शुरू हुई। मामलात की तफसील से गुफ्तगू हुई। भारतीय फौज की तरफ से उनकी 19 पंजाब का एक मेजर पठानिया भी शामिल था। मेजर यूसुफ खुद एक सिपाही के नाम की शनाख्त के साथ फ्लैग मीटिंग में मौजूद थे। मेजर पठानिया ने कहा कि हम जानते हैं कि मेजर यूसुफ कौन है, आप आएं और यहाँ बैठें। दुश्मन ने फ्लैग मीटिंग में भी एक दफा नहीं बल्कि बार बार निज़ा पीर हीरो के जवानों और ऑफिसर्स की बहादुरी का एतराफ़ किया और कहा कि हम मानते हैं कि मुसलमानों में रूहानी ताकत है जो उनको किसी सूरत में झुकने नहीं देती। इंडियन ऑफिसर 19 पंजाब जब मेरी मीटिंग हुई फ्लैग मीटिंग सीज फायर में, उसने कहा है कि हम ये समझते हैं कि मुसलमानों में कोई रूहानी ताकत है। ये उसके अल्फाज थे। और दूसरी बात जो उसने कही, 25 बंदे एक तरफ से उतरे, कैप्टन शॉल्ट्स लीड कर रहा था और 30 बंदों को रात के 2:30 बजे में लीड कर रहा था, आगे जा रहे थे इंडिया की तरफ। और पूरी आप शामिल थे। 30 पूरी डिबेट में हम पे कंसिडरेट की थी, ये गवाह इस चीज का
तो जब इंडियन से फ्लैग मीटिंग हुई उन्होंने कहा जी 30 को 300 और 25 को 250 का, अल्लाह ताला ने 10 गुना तादाद दिखा दी। फ्लैग मीटिंग के दौरान भारतीय ऑफिसर ने दावा किया कि 1 सितंबर की रात 2 बजे पाकिस्तान आर्मी के 250 से 300 सिपाही मोहरी पोस्ट के दाएं और बाएं से आगे आ रहे थे ताकि वो हमारी सिपाहियों को कैप्चर कर सके। लेकिन हकीकत में सिर्फ 55 बहादुर जवान थे, दाएं से 25 और बाएं से 30। अब निकलो काफिर के खिलाफ, मुझे मेरा ईमान है उस इलाह पे कि काफिर में इतनी, उसकी टांगों में इतनी जान नहीं, क्योंकि हमने पूरा ब्रिगेड इस खाकसार में जब कमांड कर रहा था, पता है मेरे सीनियर दोस्त बैठे हुए, सीनियर ऑफिसर्स बैठे, 10 दिन में इंडियन पूरा ब्रिगेड हमने लिखा दिया था। और मेरे पास बटालियन कौन सी जो मुकायदा थी जिसकी सर्विस 6 महीने से 1 साल के दरमियान थी, और मेरे पास जो ऑफिसर थे 13 में से 9 सेकंड लेफ्टिनेंट थे जिनकी सर्विस 3 महीने थी। लेकिन वो क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी दौलत थी हम पे। जब हमने लिटाया उनको, उसके बाद जब फ्लैग मीटिंग हुई, इंडियन की आर्मी की मुंह काला थी। एक तरफ मुजाहिद रेजिमेंट की एक कंपनी थी जिनकी तादाद 115 से भी कम थी, और दूसरी तरफ दुश्मन की माउंटेन ब्रिगेड जो अपने डिवीजन के आर्टिलरी फायर के साथ 10 दिनों तक मोहरी पर सुबह से शाम तक फायर कर रही थी। हर अटैक में दुश्मन तोप खाने की मदद ले रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसको नाकाम कर दिया। निज़ापीर की कामयाब दिफा पर मुबारकबाद देने के लिए पाकिस्तान के वजीर दिफा मोहतरम गौस अली शाह, आज़ाद कश्मीर के मुअज़्ज़ज़ अफराद और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ज़ाती तौर पर निज़ापीर तशरीफ लाए। ये अल्लाह का करम था कि सिर्फ 32 साल के जवान मेजर यूसुफ कुरैशी जब जिला हवेली में निकले तो हजारों लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनका चर्चा दूर दराज कश्मीर के इलाकों में फैल चुका था। लोग उनसे मिलने के लिए हसरतमंद रहते, और जो लोग मिलते निहायत अदब और मोहब्बत के साथ अपने जज्बात का इजहार करते। उनकी शख्सियत, उनका जज्बा और उनकी खिदमत लोगों के दिलों में गहरा असर छोड़ गई, और उनका नाम अकीदत और मोहब्बत के साथ याद किया जाता है। जब जंग का शोर धीरे धीरे खत्म हुआ, मेजर यूसुफ का मिशन सिर्फ फौज तक महदूद नहीं रहा। जिंदगी के नए सफर में उनका मिशन था इंसानियत की खिदमत और अपने लोगों के लिए रहनुमाई। मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी नाम फकत एक फौजी मनसब का उन्वान नहीं, बल्कि सखावत और मसीहाई की एक जिंदा मिसाल है। जरा गौर कीजिए, एक फर्द वाहिद जिसने हजारों नफूस को, जी हाँ 3 से 4 हजार नौजवानों को रिस्क हलाल और अजमत रफ्ता की राहों पर गामजन किया। उन्हें फौज और कौमी इदारों का हिस्सा बनाकर उनके मुस्तकबिल की बुनियादें उस्तवार की। लोग उन्हें फकत एक अफसर नहीं समझते थे, बल्कि चिराग राह, मरहम दिल और मसीहा वक्त जानते थे। आजाद जम्मू व कश्मीर की तारीख के औराक पलट कर देखिए तो शायद ही कोई ऐसी हस्ती मिले जिसने अल्लाह की सिफात का अक्स बनते हुए इतने घरों के चूल्हे जला दिए हों। सियासी मैदान में जहां अक्सर लोग इख्तदार की हवस में अपनी अना बेच देते हैं, वहां मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने एक नया मिजाज मुतारिफ करवाया। उन्होंने सियासत को महज एक फन नहीं बल्कि खिदमत खल्क बना दिया। उनका हर कदम, हर फैसला जाती मफाद से पाक था। उनका मकसद सिर्फ एक था, मजलूम की दाद रसी और फलाह इंसानियत। ये मकबूलियत उनकी सीरत पाकीज़ा और बेलौस खिदमत का मंतकी इजहार था, बल्कि इस बात की गवाही थी कि लोग उन्हें अपना मुहाफिज और गमखार तस्लीम कर चुके थे। उनका अखलाक वो आतिश पुख्ता थी जिसने न सिर्फ दोस्तों का दिल जीता बल्कि सियासी मुखालिफीन को भी अपना हमनवा बना लिया। तारीख हैरत से देखती है कि जो लोग कल तक राहों में कांटे बिछाते थे, वही उनकी बसीरत से मुतासिर होकर उनके काफिले का हिस्सा बन गए। ये दास्तान है उस मर्द मोमिन की जिसने कभी खुद बादशाही नहीं मांगी
मगर ताज साजी का वो हुनर दिखाया जिसकी मिसाल मिलना दुश्वार है। मर्द आहन मेजर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी की दास्तान सिर्फ फर्द की शान नहीं, बल्कि हर अमल और कुर्बानी ने साबित किया कि हकीकी अजमत न तख्त ताज में है न सरकारी मनसब में। जो हुनर, अज़्म और खिदमत का जज्बा दिल में बसा हो, वो अपने वक्त और कौम के लिए लाजवाल मिसाल बन जाता है। मोहतरम की किताब मैदान जंग से जन्नतुल फिरदौस तक उनकी जिंदगी के चंद अहम लम्हात को एक किताबी सूरत में पेश करती है। इस किताब को पढ़ने से कारी अल्लाह पाक की मदद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को गहराई से महसूस कर सकता है। किताब में मैदान जंग और जिहाद की असल बातें और जिंदगी के चंद कीमती तजुर्बात को बयान किया गया है। ये किताब न सिर्फ एक शख्सी सफ़र का रिकॉर्ड है, बल्कि रहनुमाई, तालीम और रूहानी सबक का एक बेहतरीन मजमुआ भी है, जो हर कदरदान और तालिब इल्म के लिए कीमती रहनुमा साबित होती है। 2025 में मोहतरम रावलपिंडी से अपने वालदैन मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट हवेली AJK तशरीफ ले गए। ये हाजिरी उनकी वालदैन से गहरी अकीदत, मोहब्बत और वफादारी का पुरखुलूस इजहार थी। वहां चंद रोज कयाम के दौरान उनकी तबीयत नासाज हो गई। अपने वालदैन की कब्रों पर फातिहा अदा करने के सिर्फ कुछ दिन बाद 28 जून 2025 को वो अपने खालिट हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा रावलपिंडी के अलावा डिस्ट्रिक्ट हवेली के इलाके अबाए गांव, हमजा वेली, खुर्शीद आबाद में अदा की गई, जहां हजारों अफराद ने निहायत अदब और अकीदत के साथ शिरकत की। फजा सूगवार थी, हर आंख अश्कबार और हर दिल गमगीन था। उनकी रुखसती पर हर तबके के लोगों ने गहरे दुख का इजहार किया। दुनिया से जाते हुए उनके चेहरे पर नुमाया सुकून और हल्का सा तबस्सुम था, जो उनकी पाकीज़ा जिंदगी, खिदमत खल्क और रूहानी इत्मीनान का अक्स पेश करता था। आज भी उनकी कब्र उनकी खिदमत, इखलास और मोहब्बत भरी जिंदगी की याद ताज़ा करती है। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी रहमतों के साए में जगह अता फरमाए और उनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन।